Okay. Previous class we have seen extrinsic semiconductors P-type and N-type. In P-type, hole density is more. N-type, your electron density is more. And we have the following relation: product of Ne into NH is equal to Ni square. ये extrinsic पैरामीटर्स है, ये इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर का इससे हमने न्यूमेरिकल किए थे. This was the solid example of NCERT book. इसमें Ne इनडायरेक्टली दिया था और NH हमें निकालना था. So we use this formula. Ne हमने डिवाइड करके ppm में दिया था. This many ppm parts per million. Pentavalent impurity was doped in these many items. तो इससे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल गई थी. और ये फार्मूला फिर हमने पहले की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो भी ऐड कर ली. It doesn't make much difference. Addition will come this much only. So this was done. ठीक है. क्यों करते हैं doping? Why do we do the doping? Because we have to increase the what is called conductivity. We have to take the concentration, I mean charge carriers up to 10 to the power 22 के order का, then it is better conductor, whether it is holes or electrons. तो doping करके conductivity बढ़ाई थी. We solve some of the numericals based on that topic. जैसे ये question है number 1 of exercise. N-type silicon है. Which of the following statement is true? N-type में क्या होता है? Pentavalent impurity add करते हैं. Electron density is more. Electrons are majority carriers. Holes are minority carriers. So which of the options will be correct? Electrons majority carriers and trivalent नहीं, pentavalent add करते हैं तो ये wrong हो गया. Electrons minority carrier ये भी wrong है. Holes minority carrier and pentavalent atoms are added as a dopant. So C is correct. और holes are majority carriers, no. Holes minority carrier होंगे, so C is absolutely right answer. और सेकंड का क्या आंसर होगा? Which of the statement given in previous question is true for the P type? P type में host majority carriers होते हैं, trivalent atoms are dopants. तो इसका D ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का. All right, so these are the important questions. Or what about this? Carbon, silicon, and germaniums have 4 valence electrons each. These are characterized by the valence and conduction bands separated by the energy band gap respectively. इसकी कार्बन कितनी एनर्जी बैंड गैप है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. Which of the following statements is true? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें? तो वी नो, इसकी हमें पता थी है ना, सिलिकॉन की 1.1 EV, जर्मेनियम की 0.7 EV. कार्बन हमें पता है कि इट इज नॉट ए सेमीकंडक्टर, इट इज इंसुलेटर. इसकी 3 EV से ज्यादा होगी. तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? कार्बन की. सेकंड नंबर पे सिलिकॉन, थर्ड नंबर पे जर्मेनियम. एनर्जी गैप से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिकॉज दिस बोथ आर सेमीकंडक्टर. कार्बन जो है इंसुलेटर है बिकॉज उसका एनर्जी गैप ज्यादा होता है, बिकॉज उसमें टाइटली बाउंड होते हैं. पीछे भी एक क्वेश्चन था, व्हाई द कंडक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम इज लो? बिकॉज उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, इसके थर्ड ऑर्बिट में है, इसके फोर्थ ऑर्बिट में है. तो इसके इजी टू रिमूव and इसके difficult to remove electrons which can take part in conduction. Tightly bound होते हैं, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए. All right, so these are the questions based on this conductivity. Question number 3 का फिर क्या आंसर होगा? C. और now PN junction, अभी हमने P सेपरेट पढ़ा, N सेपरेट पढ़ा था. अभी इनका कंबाइन कैसे बनाते हैं? इनको
इनके दोनों बोथ आर हाउ दे आर ज्वाइन, इनफैक्ट ज्वाइन नहीं करते, पहले एक लेयर बनाते पी की या एन की, ऊपर से अपोजिट डोपेंट एटम डाल देते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने सपोज पी लेयर बना दी, ऐसे पी की एक लेयर, पी की एक थिन लेयर बना ली, उसमें फिर अगर पी पी बेस है तो इसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं एक तरफ से, आर्सेनिक या एंटीमनी या जितने भी नाम हमने देखे थे पेंटावेलेंट ऐड कर देंगे। तो इस आफ्टर सम टाइम दिस दिस विल बी एन टाइप, और क्योंकि इसमें अभी पेंटावेलेंट डोमिनेट करने लगेंगे इस तरफ, और नीचे जो है तुम्हारा पी तो वो बेस है ही उसका, पी टाइप। इस तरह से यू टेक द p layer or p crystal or n crystal, then inject opposite dopant। अगर p है तो n वाले पेंटावेलेंट इंजेक्ट करो उसमें, n है तो ट्राइवेलेंट इंजेक्ट करो। इस तरह से बनती है, उसको अलग अलग शीट नहीं ज्वाइन कर सकते। व्हाई कैंट वी ज्वाइन द टू डिफरेंट शीट्स? बिकॉज उसमें रफनेस रहती है, दे आर सो रफ, उसको कितना भी फाइनल फिनिश कर लो, दे आर वी कैनॉट ब्रिंग द रफनेस लेवल 2 to 3 ए नॉट, जो कि इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होता है, दो एटम्स के बीच की स्पेसिंग है, इतना ग्राइंड करना पड़ेगा, इतना उसका स्मूथ बनाना पड़ेगा, तो मशीन से इतना नहीं बना पाते। इसलिए हम अपोजिट दैट आइटम उसमें इंजेक्ट कराते हैं, पी टाइप में पेंटावेलेंट इंजेक्ट करेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से बनाई जाती है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। अभी पीएन जंक्शन बनने के बाद उसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ करंट्स इंड्यूस हो जाते हैं, करंट फ्लो होने लगते हैं, कुछ पोटेंशियल क्रिएट होता है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाती है उससे। तो 5 टर्म्स आर देयर। एक तो सबसे पहले डिफ्यूजन करंट, अगर सपोज एक तरफ तुमने वन साइड इज पी साइड, अदर साइड इज एन, तो इसमें होल्स ज्यादा होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। तो बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, होल इधर जाने की टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन के इधर आने की। तो डिफ्यूजन movement is called diffusion. Holes will diffuse this side, electron will diffuse this side because of concentration gradient। मतलब क्या होता है? difference of concentration, natural tendency है ना, because one is positive other is negative, तो natural tendency है opposite direction में जाने की, तो उससे diffusion current generate होता है ना। होल्स इधर जा रहे हैं, जिधर पॉजिटिव चार्जेस जाते हैं, पॉजिटिव उधर ही डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, करंट की डायरेक्शन भी पी से एन की तरफ होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम पी टू एन। माइंड इट वी आर नॉट कनेक्टेड द बैटरी सो फार, अभी हमने केवल पीएन जंक्शन बनाया है, बैटरी कनेक्ट नहीं की है, फिर भी करंट फ्लो होता है इसमें, अप टू सम टाइम्स, थोड़ी देर तक फ्लो होता है, बाद में इक्विलिब्रियम आ जाती है। तो दिस इज द डिफ्यूजन करंट। क्यों होता है? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस से, एक तरफ पी है एक तरफ एन है, नेचुरल टेंडेंसी से वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, डिफ्यूजन करंट पी टू एन, पी साइड से एन साइड। उसके बाद क्या होता है? जब होल्स इधर जाने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगेंगे, है ना? तो यहाँ पर जो है, जैसा कि हमने वो स्कीमेटिक डायग्राम देखा था, पी में क्या था? पी क्रिस्टल में अब एक होल था, होल में इलेक्ट्रॉन आके सेटल हो जाएंगे, एवरी डोपेंट एवरी एवरी डोपेंट एटम विल हैव द होल एसोसिएटेड, ऐसे था। देखो ये इम्प्योरिटी एटम था, होल यहाँ पे था, इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ, इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके ऑक्यूपाई कर लेगा, तो सभी डोपेंट को, इम्प्योरिटी एटम को निगेटिव कर देगा नियर टू जंक्शन ओनली। इट हैपेंस वहां जहाँ पे जंक्शन क्रिएट होती है, एक लिमिट के बाद जंक्शन बनता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, और इधर से इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मेक इट पॉजिटिव। तो एन एन साइड में पॉजिटिव आयंस क्रिएट होते हैं जंक्शन के पास, ये जंक्शन है, और इधर नेगेटिव आयंस क्रिएट होते हैं पी में। तो द ये जो स्मॉल रीजन है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन और डिप्लीशन लेयर।
because they have been depleted of their individual charge carriers, individual electrons और holes. इसके जो electrons इधर से इधर आ गए तो डिप्लीट हो गए. They have been divided of their individual electrons and individual holes, इसीलिए डिप्लीशन वर्ड हो गए, डिप्लीट हो गए, डिवाइड हो गए. Due to diffusion of electrons from n to p side, layer of positive ions is formed in n side. यहाँ पे positive ion हो गए. And due to diffusion of holes from this side to this side, है ना, a layer of what is called layer of negative charge, ये वाली is formed in p side. Opposite है, p side में negative layer बन रही है. और this thin layer of positive and negative bound charges is called depletion layer. मतलब depletion layer में केवल bound charges होते हैं. Free charges have been depleted, means have been devoid of. उनके जो free charges यहाँ पे रहेंगे, free holes वगैरह रहेंगे sufficient, इधर free majority carrier electrons रहेंगे, इसमें नहीं रहेंगे. So it is called depletion layer because of the movement of electron and holes across the junction. एक depletion layer बन जाती है जिसमें केवल bound ions होते हैं, है ना. And it is called depletion layer since due to the movement of free charges across the junction, this region is devoid of their free charges. This is free of free charges. Divide means no. तो free of free charges बोल सकते हैं उसको. Divide की जगह हम free word use कर सकते हैं. Free of their free charges or divide of their, that word depletion comes from this divide. Divide means उस पे नहीं है, free charges नहीं है. ठीक है. Thickness will be depending upon the thickness कितनी है, about the 1/10 of micrometer. 0.1/10 माइक्रोमीटर. काफी थिन है, वेरी वेरी थिन. डायग्राम में बहुत थिक दिख रही है, बट इट इज ऑफ माइक्रोमीटर. माइक्रो इज वेरी वेरी स्मॉल, 10⁻⁻⁶ मीटर. उसका भी 1/10. तभी इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है. पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इन अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम राइट टू लेफ्ट होगी. तो डिप्लीशन, आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द जंक्शन ड्यू टू द पॉजिटिव स्पेस चार्जेस भी बोलते हैं उसको. उस पर्टिकुलर स्पेस में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस है. तो पॉजिटिव स्पेस चार्जेस on n side and negative space charges on p side, electric field which is directed from positive to negative charges develops near the junction. Electric field develop होती है जंक्शन के पास, पॉजिटिव से नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से जाती है? प्लस से माइनस की तरफ जाती है. इसमें माइनस इस तरफ है, प्लस इस तरफ है, तो ऐसे आएंगी. ऑलराइट, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बनेगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाद में देखते हैं, उससे पहले एक और करंट देखते हैं, ड्रिफ्ट करंट. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये माइनॉरिटी चार्जेस को ड्रिफ्ट कराती है. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द जंक्शन विल ड्रिफ्ट द इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, कुछ माइनॉरिटी कैरियर्स जिसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींचेगी. इसमें होल्स होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन की जाने की टेंडेंसी होती है. होल पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, और इसके जो माइनॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अपोजिट जाएंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई वो माइनॉरिटी कैरियर्स को ड्रिफ्ट कराती है अक्रॉस द जंक्शन, उससे ड्रिफ्ट करंट बनता है. इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द जंक्शन, electrons on p side moves towards n side and holes on n side moves towards the p side, which produces the drift current, which is opposite to the diffusion current. And इसकी डायरेक्शन n से p की तरफ है. प्रीवियस करंट के अपोजिट है. प्रीवियस करंट p से n की तरफ था. ऑलराइट,
और ये माइनॉरिटी कैरियर की वजह से, पहले वाली जो थी मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से थी इलेक्ट्रिक। और ये बाद में डेवलप होती, जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई तब ये डेवलप होती, पहले नहीं रहता ये वाला करंट। तो पहले डिफ्यूजन करंट लार्ज रहेगा और ड्रिफ्ट करंट बहुत कम रहेगा, बाद में ड्रिफ्ट करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं, है ना। इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज, ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल, आफ्टर सम टाइम ड्रिफ्ट करंट इंक्रीजेज, डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेज, एंड एक इक्विलिब्रियम कंडीशन सेट हो जाती है जहाँ पे दोनों करंट इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, नेट करंट विल बी जीरो। क्योंकि बैटरी तो लगी नहीं है, टेम्परेरी करंट डेवलप होता है और बाद में इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाती है और नेट करंट जीरो हो जाता है। ऑलराइट, नेट करंट विल बिकम जीरो आफ्टर सम टाइम्स व्हेन बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में तो है ही, तो नेट करंट विल बी जीरो। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बनता है, तो उसको बैरियर पोटेंशियल बोलते हैं। बैरियर पोटेंशियल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट क्रिएट्स द बैरियर इन फर्दर डिफ्यूजन। जब डिफ्यूजन होते हैं ना, तो वो फिर डिफ्यूजन होते ही चले जाएंगे, है ना। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, उससे उससे बैरियर पोटेंशियल बनता है which opposes the further diffusion. It is the potential difference across the junction which prevents the further diffusion of free charges across the junction. क्योंकि यहाँ पे तो पॉजिटिव है और होल्स भी पॉजिटिव है, तो इधर आने की टेंडेंसी रहेगी तो होल को रिपेल कर देंगे, और इधर निगेटिव है और इधर, तो ये रिपेल करेंगे। शुरू में रिपेल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ फास्ट मूवमेंट ऑफ, बिकॉज ऑफ द फास्ट डिफ्यूजन। ये पोटेंशियल बैरियर थोड़ा वीक होता है इनिशियली, बाद में वो अपोज करता है। पोटेंशियल बैरियर को हम कैसे दिखाते हैं? इधर माइनस है, माइनस लो वैल्यू है, इधर प्लस है, तो माइनस से प्लस की तरफ ऐसे ऐसे दिखाते हैं, इतना वी नॉट से इंडिकेट करते हैं उसको पोटेंशियल बैरियर, है ना। तो पर्टिकुलरली दे आस्क द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर एंड डिप्लीशन रीजन। ब्रीफली डिफाइन करना है तुम्हें, पोटेंशियल बैरियर जो है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलपिंग अक्रॉस द जंक्शन which prevents the further diffusion of electrons and holes across the junction. Diffusion and drift current also we have discussed. तो ये 5 टर्म्स हैं। अभी जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि कैसे बनाते हैं पीएन जंक्शन, तो इसमें पूछा है, उसी के ऊपर बेस क्वेश्चन है, कैन वी टेक द वन स्लैब ऑफ पी semiconductor physically join it to the n type semiconductor to get the pn junction? Answer is no, because interatomic spacing जो होती है 2 to 3 ए नॉट के ऑर्डर की होती है, और बट जो रफनेस है उसकी, जो स्मूथनेस है सरफेस की, इस ऑर्डर की अचीव नहीं कर सकते, कितना भी उसको फाइन फिनिश कर लो, वी कैनॉट अचीव दिस मच ऑफ smoothness in any crystal, any slab, therefore they cannot be joined. Answer is no, any slab however flat will have roughness much larger than the interatomic crystal spacing, which is 2 to 3 a naught, and hence continuous contact at the atomic level will not be possible. Continuous contact चाहिए वहां पर, possible नहीं होगा. The junction will behave as a discontinuity for the flowing charges, charge carrier. So discontinuity आ जाएगी, then it will not work, even if you are able to join it by some means. But continuity will not be there. इतनी spacing रहनी चाहिए continuously to flow the current across the junction. तो एक ही स्लैब से हमें एक साइड में पी टाइप क्रिएट करना पड़ता है, दूसरी साइड में एन टाइप क्रिएट करना पड़ता है इन वन स्लैब इटसेल्फ. All right. What about the question number 4 of exercise? In an unbiased मतलब बैटरी अभी कनेक्ट नहीं, बायसिंग मतलब कनेक्शन ऑफ बैटरी इज कॉल्ड बायसिंग. तो अनबायस्ड पीएन जंक्शन, host diffuse from P side, P region to N region because host P से
एन की तरफ क्यों जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड, एन रीजन अट्रैक्ट देम, नो। कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से चलते हैं ना, दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं, डिफ्यूजन पोटेंशियल डिफरेंस से नहीं होता है, इट इज ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। होल कंसंट्रेशन इन पी इज मोर एज कंपेयर टू, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से डिफ्यूजन होता है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ चार्जेस, एक साइड में पी मोर है, एक साइड में एन मोर है, बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दे मूव अक्रॉस। डिफ्यूजन उसकी वजह से, ड्रिफ्ट किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है ड्रिफ्ट। व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, बोलो? इट इज द क्वेश्चन ऑफ बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर एज वेल एज कौन सा है तुम्हारा, और क्या है, और इस चैप्टर का कंडक्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस है ना, दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है। जब हीट बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का कम होता है। सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं लोअर एनर्जी बैंड से अपर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है 3 से, टेम्परेचर है 300 टू 400, टेम्परेचर डिपेंडेंस 300 से 400 की तरफ जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो कॉपर का बढ़ेगा और उस रेंज में लीनियरली बढ़ता है, इस रूम टेम्परेचर की रेंज में लीनियर इंक्रीज ऑफ कॉपर। और उसका सिलिकॉन का हमने ऐसा देखा था, सिलिकॉन जर्मेनियम एक्सपोनेंशियली डिक्रीज देखा था, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, सी ऑप्शन होगा ना। ठीक, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा सिलिकॉन का, सिलिकॉन का ऐसा आएगा। और कॉपर का कॉपर का इनिशियली थोड़ा ऐसे जाता है, बाद में फिर लीनियर हो जाता है ये टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर पे थोड़ा सा नॉन लीनियर रहता है, बाद में इस रूम टेम्परेचर की रेंज में लीनियर हो जाता है। यू कैन रेफर द एनसीईआरटी बुक, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में है ये ग्राफ। ऑलराइट, नाउ मतलब रिवर्स सेक्शन हो रहा दोनों में, एक में कंडक्टर में
Can you hear me? Yes, sir. Just a minute. All right. We were discussing the forward biasing of PN junction डायोड. उससे पहले हमने क्या देखा था ये डायोड के बारे में. डायोड का सिंबल क्या होता है? ऐसा एरो एरो जैसा दिखाते हैं. और हाउ डज इट लुक लाइक, ऐसा दिखता है वो. और ये सिंबल लेते हैं ना, ये पॉजिटिव साइड होती है एरो वाली प्लस, और ये नेगेटिव होती है. ये वैसे भी देखो माइनस, ये जो लाइन है इसको ओरिजिनल कर दो तो माइनस जैसा इंडिकेट करता है. और एंड इट रिप्रेजेंट द कैथोड दैट इज नेगेटिव, है ना. तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट विल बी फ्रॉम एरो टू अदर साइड. एरो हर पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव. डायरेक्शन ऑफ एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, है ना. और यहाँ पे मेटल कांटेक्ट लगा देते हैं पीएन जंक्शन में, क्योंकि हमें सर्किट में कनेक्ट करना है. ऑलराइट, बिफोर दैट ये क्वेश्चन हो गया था. ये क्वेश्चन हो गया था, कहाँ पे लिंक गया था? आर यू देयर? दिस वाज डन. ये हो गया था क्वेश्चन. कम ऑन क्विकली बताओ. Yes, sir. ओके, देन डायोड हमने डिस्कस किया. अभी डायोड के फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस देखना है क्या होता है ना. फॉरवर्ड बायस क्या होता है? जब हम इसके पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, एन को एन से नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, तो इस तरह के कनेक्शन क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस, है ना. पी साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड एन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. तो बैटरी का पोटेंशियल तो इधर से इधर, बैटरी का पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है. तो वी कैन से उसका पोटेंशियल की डायरेक्शन इधर है. वैसे तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, इधर से इधर है ना. और पोटेंशियल और जो बैरियर पोटेंशियल है वो अपोजिट है. बैरियर पोटेंशियल का पॉजिटिव इधर है, कैन यू सी, और नेगेटिव इधर है. तो दोनों अपोजिट है पोटेंशियल. तो अप्लाइड पोटेंशियल अपोजिट द बैरियर पोटेंशियल, तो बैरियर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, इतना रह जाता है बैरियर पोटेंशियल, वी नॉट माइनस वी. बैरियर पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, उसको डिक्रीज करता है बैरियर पोटेंशियल को अप्लाइड पोटेंशियल, है ना. और एंड उसकी जो थिकनेस है डिप्लीशन लेयर की वो भी कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल अपोजिट द बैरियर पोटेंशियल. तो थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस and hence it offers small resistance in the forward bias. फॉरवर्ड बायस में उसका रेजिस्टेंस कम ऑफर करता है वो, है ना. एंड सिग्निफिकेंट करंट फ्लोज ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स. मेजॉरिटी कैरियर की वजह से ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यहाँ भी होल है, प्लस उसको होल को पुश करेगा इधर. और ये निगेटिव है, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स इधर पुश होंगे. तो मेजॉरिटी कैरियर्स जो है दे विल मूव अक्रॉस द जंक्शन एंड हेंस significant current flows in by the majority carriers in forward bias. तो फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है? पोलैरिटी जो है पी को पी से कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और क्या होता है? अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल को अपोज करके थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर कम कर देता है, रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है, और सिग्निफिकेंट करंट फ्लो होता है मेजॉरिटी कैरियर की वजह से. और रिवर्स बायस में इसका अपोजिट होगा. पी को हम किससे नेगेटिव से कनेक्ट, इसको यहाँ पे रिवर्स कर देंगे, यहाँ पे कनेक्शन बैटरी रिवर्स कर देंगे, ऐसा इस तरफ प्लस कर देंगे, एन की तरफ प्लस कर देंगे, तो और ये बढ़ जाता है, दोनों पोटेंशियल एक डायरेक्शन में हो जाएंगे. तो अप्लाइड पोटेंशियल इज इन द डायरेक्शन ऑफ बैरियर पोटेंशियल प्लस हो जाएगा, वी नॉट प्लस वी हो जाएगा.
बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर भी बढ़ जाएगी, और बहुत हाई रेजिस्टेंस, आई मीन हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा काफी, और इनसिग्निफिकेंट करंट विल फ्लो बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। इसके पॉइंट सारे रिवर्स कर दो, देखो रिवर्स बायस में सब रिवर्स कर दो, बैटरी की पोलैरिटी भी रिवर्स कर दी हमने, देखो यहाँ पे माइनस हो गया, माइनस को पी के साथ पॉजिटिव टर्मिनल कॉइन के साथ डिप्लीशन लेयर, अब डिप्लीशन लेयर की दोनों पोटेंशियल एक साइड में हो गए, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ गई, रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, और बहुत कम करंट, और बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ गया, बहुत कम करंट फ्लो होता है, माइक्रो एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का करंट फ्लो होता है। तो इनसिग्निफिकेंट करंट हो गया, और किसकी वजह से? माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। यहाँ ये प्लस है ना, और इसमें जो होल होंगे उसको पुश करेगा इधर, और यहाँ पे माइनस है, जो माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर पुश होंगे, तो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है थोड़ा बहुत। माइनॉरिटी कैरियर वैसे भी बहुत कम रहते हैं, तो करंट भी बहुत कम हो जाता है, इनसिग्निफिकेंट करंट है। माइक्रो एम्पियर करंट इज वेरी वेरी स्मॉल करंट विच इज जनरली नॉट डिटेक्टेड बाय द इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें रिवर्स बायस में हाई रेजिस्टेंस हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस विद द कंडक्टर। कंडक्टर में ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा होता है। एक तरफ तो बहुत लार्ज करंट फ्लो होता है, एक तरफ बहुत स्मॉल करंट फ्लो होता है, अगर हमने पोलैरिटी चेंज कर दी उसकी, है ना। तो दैट एडवांटेज इज टेकन, ये जो एडवांटेज है हम डिवाइसेस में, डायोड के डिवाइसेस में यूज करते आगे, है ना। उससे पहले हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं। अगर रेजिस्टेंस जो हाई रेजिस्टेंस रियली ऑफर करता है क्या, रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं। उससे पहले वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी हमने जो फॉरवर्ड बायस पढ़ा था उसमें वोल्टेज एंड करंट कैसे चेंज होता है उसका ग्राफ देख लेते हैं, है ना। तो ऐसा करंट, ऐसा ग्राफ आता है। तो फॉरवर्ड बायस में पी को पी के साथ कनेक्ट किया हुआ हमने, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया और यहाँ पे अमीटर लगा दिया, है ना। तो जब हम धीरे धीरे ये